Hello everyone. Today we are going to start our online classes in which we are studying about gravitation. Student, as you know, in our solar system there are some celestial bodies which are orbiting about sun on some fixed orbit. These celestial bodies are called planets. Student, in our solar system there are 8 planets named as Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Some other celestial bodies which are orbiting about these planets and are called satellite. Student, in our today's lecture we are studying about the motion of these planets and try to understand how these planets revolve around the sun, how is path and what is velocities at different points. Student, about 500 years ago a physicist named John Kepler, who gave 3 laws of planetary motion on the basis of their observation. Today we are studying about these laws. So let's start our lecture. So we are studying about Kepler's laws of planetary motion, in which the first law is all planets moves around the sun in elliptical orbit having the sun at the focus of the orbit. Student, the first law of planetary motion is also known as law of orbital motion, in which Kepler tells us all planets revolve around the sun on elliptical orbit, and the sun is at the focus of elliptical orbit. Student, to understand this law, first we have to know about ellipse and its focus. So let's draw the figure of ellipse. Student, this figure is known as ellipse, in which these are axis and this is y axis and this is x axis. This point is known as origin or center of ellipse. Student, the maximum distance between origin and
the circumference of ellipse is represented by A, and this is known as semi major axis. So this will be also equals to A, and the total distance from A to B is equals to 2A, and this distance from origin to C is known as semi minor axis. Student, in ellipse there are 2 points. There are 2 points which are called focus, which is lie at a distance A into E. Also here A into E, it is also called focus. Student, this distance is also equals to B, and the total distance from C to D is equals to 2B. Student, here E is eccentricity. The relation between E, B and A are B square equals to A square minus A square E square 1 minus E square. Student, the equation of ellipse, is x square upon A square plus y square upon B square equals to 1. This is the equation of ellipse. Student, actually E tells us about ellipse, how it is deviated from circle. बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से समझें तो ये आपको एक सर्कल के जैसा ही दिखेगा, जिसमें जो रेडियस है सर्कल का अगर a है और ऊपर से हम उसको क्या करें, ऐसे पुश करें, तो आपको दिखेगा कि ये जो रेडियस है इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे मान लो कि हमने क्या किया कि एक सर्कल ड्रॉ किया, इसमें ये जो रेडियस है वो a होगा, ये भी a होगा, ये a होगा और ये भी a होगा। अगर इस सर्कल को हम ऐसे प्रेस करें तो आपको लगेगा कि ये जो रेडियस है ये a से कम हो जाएगा, यानी b इज लेस देन a। और ये जो इसेंट्रिसिटी है हमें यही बताता है कि ये सर्कल से कितना ज़्यादा डेविएट हुआ है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो e की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है किसी भी इलिप्स के लिए। 0 अगर हो जाए, देखो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, 0, और जैसे ही 0 पुट करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल, और इक्वल होते ही अगर हम यहाँ a स्क्वायर पुट कर दें, a स्क्वायर यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही कॉमन करेंगे ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल का, और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। स्टूडेंट, इस इलिप्स के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। यहाँ सेमी लेटस रेक्टम
L इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए के इक्वल होती है। बच्चों ये कुल इंफॉर्मेशन हो गई इलिप्स के बारे में। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहले x लिखते हैं तो x की वैल्यू इस एक्सिस पे 0 और यहाँ पे b। इस एक्सिस का अगर कोऑर्डिनेट लिखना है हमें तो ये हो जाएगा 0 माइनस b। यहाँ लिखना होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b, 0 और यहाँ पे अगर लिखें तो माइनस b, 0। और ये जो दो फोकस हैं इलिप्स में वो कितनी डिस्टेंस पे हैं, a इंटू ई डिस्टेंस पे, और यहाँ से भी कितने डिस्टेंस पे हैं, a इंटू ई डिस्टेंस पे। बच्चों ये हो गया पूरा आपका इलिप्स, जिसमें a क्या है, ये सेंटर से इसके ओरिजिन से, इलिप्स के ओरिजिन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसके सरकमफेरेंस तक, उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। b जो है इसको क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2b के इक्वल, और यहाँ से यहाँ तक की सारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a के इक्वल। बच्चों इसेंट्रिसिटी E, B माइनर एक्सिस एंड A मेजर एक्सिस के बीच में जो रिलेशन है वो है b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लिख दें तो ये b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जो इक्वेशन होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अगर किसी मोशन को हमें इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या बनाते हैं, उसके इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर इलिप्स को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। और ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बच्चों अगर किसी भी सर्कल, किसी भी इलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी होती है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 हो जाए तो हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, 0, और जैसे ही 0 पुट करेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होते ही यहाँ पुट करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा। बच्चों ये तो हो गई बात इलिप्स के बारे में। अब इसके हेल्प से हम के प्लस फर्स्ट लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू केपलर, ऑल प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड सन ऑन elliptical orbit. So let's draw first ellipse. So let the sun is at the focus, and what is the distance between focus and origin, E into A. This is our sun, and let this is our planet. Hey student, as you see, as planets revolving around the sun, the distance between planet and sun is not constant. This change when planets goes near to A, this point, and B, this point. If we are trying to find the maximum and minimum distance between sun and planet, let's find the maximum distance between planet and sun are maximum. स्टूडेंट आप देखिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस सन और प्लैनेट्स के बीच में कब होगा, जब ये प्लैनेट रिवॉल्व करते हुए कहाँ पहुँच जाए,
पॉइंट बी पर पहुंच जाए, तो ये सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब हमें यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अभी पिछले फिगर में हमने देखा कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए के इक्वल होगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए इंटू ई के इक्वल, यानी मैक्सिमम जो डिस्टेंस आएगा आर मैक्स इक्वल्स टू ये आएगा ए 1 प्लस ई। ऑल्सो अगर हम मिनिमम डिस्टेंस निकालें, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, देन ये डिस्टेंस आर मिनिमम होगा। और आर मिनिमम कब होगा, जब ये प्लैनेट रिवॉल्व करते हुए कहाँ पहुँच जाए, पॉइंट ए पर पहुँच जाए। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस ए के इक्वल है और ये डिस्टेंस ए ई के इक्वल है। तो अगर हम क्या करें, ए में से ए ई को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये हमें मिलेगा कितना, ए 1 माइनस ई के इक्वल, यानी आर मिनिमम कितना आ रहा है, वो आ रहा है ए इन ब्रैकेट 1 माइनस ई के इक्वल। बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ा जाए। सो बच्चों इसको इरेज करते हैं। बच्चों एक चीज़ और, जब प्लैनेट सन के सबसे नज़दीक होता है यानी नियरेस्ट पॉइंट पर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पेरिगी। और जब सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर होता है यानी डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एपिगी। एपिगी ये नोट कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड लॉ की तरफ। Second law, the line joining two the planets to the sun sweeps out equal areas in equal time, that is the aerial velocity is constant। स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लैनेट्स, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए फिर इसको समझते हैं फिगर से हम। बच्चों सेकेंड लॉ का मतलब ये है कि मान लो कि सन कहाँ है, किसी एक फोकस के, इस इलिप्स के एक फोकस पर है। मान लिया ये ओ डिस्टेंस पे है, ओ पॉइंट पे। कोई प्लैनेट ले लेते हैं जो पॉइंट ए पर है किसी एक टाइम इंस्टेंट t1 के लिए। तो ये लाइन मिला दें हम पहले इससे, और ये सपोज कर लें कि ये डिस्टेंस कितनी है, r के इक्वल है।
कोई प्लैनेट लिया जिसका मास जो है वो कितना है, m है, m मास का कोई प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। चलो अब ये मान लो कि किसी एक टाइम इंस्टेंट t1 पर ये प्लैनेट यहाँ है, फिर dt समय बाद यानी आफ्टर टाइम इंटरवल dt द प्लैनेट्स reached at point B, then the area enclosed between A, O, B, this area is equal to the area of A dash O B dash, मीन्स कि dt समय में, कितने समय में, dt समय में ये प्लैनेट जितना एरिया कवर करेगा, फिर अगले dt समय में वो कहीं भी हो, पोजीशन उसका क्या हो, कहीं भी हो, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी भी पोजीशन पे हो, तो dt टाइम में ये हमेशा इसी एरिया के इक्वल ही जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा, इस एरिया के इक्वल ही, यानी जो एरियल वेलोसिटी है इसकी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्टूडेंट अगर आप ध्यान से समझें इस चीज़ को, तो हम मान लें कि यहाँ पे जब प्लैनेट A से B पर था तो उसकी वेलोसिटी v1 थी, और जब ये इस पॉइंट पे पहुँचा, सन के नज़दीक पहुँचा, तब इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि इक्वल टाइम में ये इक्वल एरिया अगर स्विप करती है, बच्चों ध्यान से देखिए कि जो v1 की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी किससे, v2 से। इसका मतलब जब प्लैनेट सन से दूर होगा, सन से फार अवे होगा, तब उसकी वेलोसिटी कम होगी उसके कंपैरिजन में जब प्लैनेट सन के नियरेस्ट होगा, यानी v2 हमेशा क्या होगा, v1 से ज़्यादा होगा। मतलब ये, अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, this area divided by time, then it is equal to aerial velocity is always equal to area of triangle A dash O B dash upon dt, means aerial velocity, if we represent aerial distance with dA, then aerial velocity dA upon dt is always constant, and this is Kepler's second law. Student, if we are trying to find the area of this triangle, then what will the area of this triangle? The area of triangle AOB is equals to half into base into height. Student, as we know, the orbit of any planet is too much long. If we take a small time dt, and in which the distance means this path AB, so we take this path as a straight line, then this will be the height of that triangle. So half base equals to r, and this height AB. Now we are find AB. Student, as you know, angle equals to arc upon radius. Let this angle, if we draw this triangle here, this look like as A and B, and this angle equals to d theta, angular displacement. Then angle d theta, arc
AB and radius r. Then AB equals r d theta. Now the area dA equals to half r into r d theta, means dA equals to half r square d theta. If we differentiate this equation, then we get dA upon dt equals to half r square d theta upon dt. Now in circular motion we know that d theta upon dt is equals to omega, angular velocity. Then this equation r square omega. Student, if we multiply m and divide m, then this equation will change as 2m r square omega, and we know that I, moment of inertia, equals to mr square. Now 2m, this will be equal to I into omega. Also we know angular momentum J equals to I omega. So in the place of I omega we can put J. Then dA upon dt equals to 1 upon 2m into J. Student, from Kepler's second law we know that dA upon dt is constant, 2m mass of planet is also constant, then J is constant. Then we can say the angular momentum of any planet is conserved, J equals to constant, and this is the second law of Kepler's. बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट, इसको इरेज कर दिया जाए एंड अब समझा जाए Kepler's थर्ड लॉ को. Kepler's थर्ड लॉ. Third law is that the square of the period of revolution of any planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of its elliptical orbit. Student, if we represent the time period with t and we know the semi major axis is equals to a,
Then according to third law, the square of time period means t square is directly proportional to semi-major axis a cube, or we can write t equals to k a cube, k a cube, and this is k plus third law. Now we have to prove this equation, and for this I have to erase. स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था टाइम पीरियड के बारे में, जहां हमने ये लिखा था कि टाइम पीरियड, ये टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कहें या टाइम पीरियड कहें, दोनों चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था t से, और बताया था आप लोगों को कि ये इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। So, in case of elliptical orbit, this time period will be equal to area of elliptical orbit upon aerial velocity, aerial velocity, and the area of ellipse is equals to pi a into b, and aerial velocity सेकेंड लॉ से हमने निकाला है, ये कितना होगा, dA अपॉन dt, ये हो गया t। बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो इलिप्स है वो सर्कल के जैसा ही है, बस हमने ऊपर से उसको क्या कर दिया है, पुश किया है, जिससे जो अपर रेडियस है वो जो साइड रेडियस है उससे क्या हो गया है, छोटा है। अगर आप देखिए ए और बी दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो ये एरिया ऑफ सर्कल के हो जाएगा, जहां रेडियस कितना होगा, ए के इक्वल, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, रेडियस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, और ए क्या होगा, उस सर्कल का रेडियस। ठीक, तो थर्ड लॉ में ये कहा गया है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, तो इसका क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, तो लिखें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन टी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, we can put dA equals to j upon 2m as we have proved in equation second k plus second equation. So we can write t square equals to 4 pi square m square a square b square upon j square. Student, in first लॉ में हमने बताया था लेटस रैक्टम के बारे में, सेमी लेटस रैक्टम, L इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। जो एलिप्टिकल पाथ है उसका जो सेमी लेटस रैक्टम होता है वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए के इक्वल, तो हम लोग बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, L इंटू ए। सो बी की वैल्यू पुट कर दी जाए इस इक्वेशन में, हमें मिलेगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल ए स्क्वायर एंड एल इंटू ए अपॉन जे स्क्वायर। टी स्क्वायर इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल अपॉन जे स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू ए क्यूब। So we can write t square equals to k a cube, where k equals to 4 pi square m square L upon j square, and this is third law of Kepler. Now
If we have two planets having time period t1, then according to third law, t1 square is equals to k a1 cube, and the second planet, the time period t2 square equals to k a2 cube, equation number 2. If we divide equation 1 by equation 2, then we have t1 upon t2 whole square is equals to a1 upon a2 to the whole cube. बच्चों, आप लोग इसके हेल्प से अपने बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं. ये हो गया केपलर के तीनों लॉ. इसके आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.